Good morning, everyone. Today is the session 3 from the playlist of friction, and the topic is friction between the stack blocks. एंड यहाँ पर मैंने एक ये फिगर बनाया हुआ है जिसमें कि एक ये मास m1 है और एक मास m2 है. मास m2 इज लाइंग over the surface of this mass m1 और m1 is lying on this surface. ठीक है. और today we will be discussing the case where the blocks move with a common acceleration under the influence of an external force. ये दो blocks हैं. ये दोनों this m2 block is kept over the m1 block, and this m1 block is kept on a horizontal surface whose coefficient of static friction is mu1, and the coefficient of static friction between these two blocks is mu2. नाउ अब यहाँ पर जो पहला केस लिखा है जिसमें कि ब्लॉक्स विल मूव विद अ कॉमन एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि when we are applying some external force, in this case what I have done is I have applied the external force on this block m1. So when an external force is being applied on this block m1, then there is no slippage between these two blocks, that is m1 and m2. when ठीक है, स्लिपेज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि दे आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन. अगर किसी एक का भी एक्सेलरेशन जो है वो कम है या ज़्यादा है, अगर मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और इसका कम है, तो व्हाट विल हैपन, दिस ब्लॉक विल बी लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट इज कॉल्ड दैट विल बिकम अ केस ऑफ स्लिपेज. तो स्लिपेज नहीं होने का मतलब ये है कि ब्लॉक्स आर मूविंग विद ए कॉमन एक्सेलरेशन. दैट इज व्हेन आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एफ ऑन दिस ब्लॉक, both these blocks are moving together, and both these blocks will move together only when they have a common acceleration. ठीक है. So अभी इस केस में यहाँ पर मैंने एक फोर्स F लगाया हुआ है M1 ब्लॉक के ऊपर, और अब हमें ये देखना है कि for what value of this coefficient of friction both the blocks will move together. ठीक है. and at the same time we can also calculate their common acceleration. तो पहला केस हम लोग लेते हैं, जैसे let us make the free body diagram of this block m1. अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस पे एक फोर्स मैंने F लगा दी है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स है, एंड नाउ दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. mu1 is the coefficient of friction between the surface of this block m1 and this horizontal surface, and mu2 is the coefficient of friction between these two blocks. Now जब हम फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, so this body will have a tendency to move in this direction. ठीक है. Now friction क्या है? The force of friction opposes the relative motion. ब्लॉक आगे जा रहे, since there is a tendency of the block to move in this direction, so the force of friction will act in this direction. So यहाँ पे एक force of friction होगा. Let us say I am just denoting this as Fs. इसको हम लिख लेते हैं 1. ठीक है. So this force of friction, because force of friction opposes the relative motion, so ये force of friction पीछे की तरफ लगेगा. ठीक है. और दूसरा यहाँ पे भी एक force of friction है. ठीक है, यहाँ पे भी. तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको मैंने जो डिनोट किया है, लेटर से ये हो गया Fs1. अब यहाँ पर भी आपका द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक इज mu2. तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, बिकॉज दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, सो व्हाट विल हैपन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन at this surface, it will act in this direction for their block m1. m1 ब्लॉक के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, the force of friction for the this block m1 will be acting in this direction, that is F. इसको मैं लिखता हूँ Fs2. that is यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu2 दिया हुआ है, सो बिकॉज ऑफ दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन फॉर दिस ब्लॉक m1, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन. इसको मैंने Fs2 से डिनोट कर दिया है. ठीक है.
सो ये जो हुआ इस ब्लॉक के लिए. नाउ M2 ब्लॉक के लिए, now M1 block has since the M1 block has a tendency to move in this direction, it is ठीक है. So what will happen, ये जो M2 block है it will be left behind, ठीक है. और you can say that the force of friction क्या करेगा, वो ये this FS2 जो है, ये this force of friction for this block that is M2, it will be acting in this direction because this force of friction will try to move both these blocks together. ठीक है, ये ब्लॉक हमने फोर्स इस पे F लगाया, so this block has a tendency to move forward in this direction and because of that ये वाला जो ब्लॉक है it will be इसकी क्या टेंडेंसी होगी, मीन्स the relative motion between these two blocks will be in this direction. ठीक है, so the force of friction क्या करेगा, it will be the direction of the force of friction for this block M2 will be in this direction, that is in the direction in which the force is applied, so that both these blocks move together. ठीक है ना. तो अब इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज FS2, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से a maximum, the value of maximum acceleration will be, that is you know that this force is equal to mass into acceleration, the acceleration will be equal to F by m. F क्या है, FS2 है, divided by m2. So this is the maximum value of acceleration which will be generated in this block m2. ठीक है, तो ये हमारा हो कितना जाएगा, अब FS2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन. लेट अस से नॉर्मल रिएक्शन मैं लिखता हूँ N2 डिवाइडेड बाई N2. नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू मास. अच्छा, इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है, द नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस सरफेस विल बी acting in the upward direction, और होगा कितना, this will be equal to mass of this block that is M2 into G, where G is the acceleration due to gravity. ठीक है ना, बिकॉज ये हो जाएगा and divide by M2, so this will be equal to mu into G. और you can say यहाँ पर जो हमने mu लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ mu2 लिया हुआ है, ये 2 है, तो ये आपका हो गया mu2G. So the acceleration of this block M2 due to the application of this external force on the block of mass M1 will be equal to mu2G. So अब if both the blocks are moving with a common acceleration or there is no slippage, तो इन दोनों का acceleration बराबर होना चाहिए. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा जो, अब हम इसका भी निकालेंगे एक्सीलरेशन कितना हो सकता है. इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है FS1 और FS2 दे आर एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. सो नेट फोर्स इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर क्या हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू F माइनस, इसको मैं ले लेता हूं FS1 प्लस FS2, ये हो जाएगा. दिस इज द नेट, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग इन द दिस बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड सो द नेट फोर्स ये हो जाएगा F माइनस FS1 प्लस S2 विच विल बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज M1A. बिकॉज इन दोनों मासेस का जो है, इफ दे आर मूविंग विद अ कॉमन एक्सेलरेशन, तो इसका भी एक्सेलरेशन और इसका भी एक्सेलरेशन दोनों का मास का सेम होगा. तो M की वैल्यू, तो यहाँ से हमारा जो आपका ये आपका आ जाता है A की वैल्यू. A की वैल्यू क्या हो जाएगी, F माइनस, अब FS1 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू mu1 n. n इज अ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू M इंटू G. अब इस सरफेस के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू द टोटल, जो ये मास कितना होगा इस सरफेस के लिए जो मास होगा, दैट विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2. तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे M1 प्लस M2 इंटू G. ठीक है,
और FS2 हमारा कितना है, विच इज इक्वल टू म्यू 2 M2G डिवाइडेड बाई M1। ठीक है, F माइनस ब्रैकेट में ये आपका दिस इज द नेट फोर्स एंड डिवाइडेड बाय द दिस मास दैट इज इक्वल टू M1। तो ये मेरा हो जाएगा, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स मैंने निकाल दिया, ठीक है, एंड ये इसका मास हो गया, ठीक है। तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका ये आएगा। अब ये दोनों, ये जो एक्सेलरेशन है और ये वाला एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक M2 और एंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक M1, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो so it implies that F minus mu1 M1 G plus mu1 M2G plus mu2 M2G, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी इज हाँ, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इस वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं तो देन ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई M1। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक M1, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। एंड नाउ ये जो एक्सेलरेशन है वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, दैट इज ए जो है दिस इज इक्वल टू म्यू 2G विच इज इक्वल टू F माइनस ब्रैकेट में, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, विच इज इक्वल टू F माइनस mu1, और हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि G यहाँ पर हमारा कॉमन है तो हम G लिखो, कॉमन कर लेते हैं, F माइनस G कर दिया मैंने, ब्रैकेट में हो जाएगा mu1 G1 M1 प्लस mu1 M1 सॉरी M2 प्लस mu2 M2, ये हो गया, एंड डिवाइडेड बाई M1, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपका एक इक्वेशन बन जाती है वेयर mu2G इज इक्वल टू F माइनस G mu1 G1 mu1 G M1 प्लस mu1 M2, ये G यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी G मैंने कॉमन ले लिया है, सो ये हो जाएगा आपका mu1 M1 हो जाएगा, mu1 M1 प्लस mu1 M2 प्लस mu2 M2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा। सो अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस this mu1 and mu2 also, ठीक है, कि मीन्स फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दीज टू ब्लॉक्स विल हैव ए कॉमन एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर अगर हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आई विल जस्ट राइट इट हियर,
ये इसको यहाँ लिखते हैं हम μ2g m1, यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू f माइनस जी हो गया आपका μ1m1 प्लस μ1m2 प्लस μ2m2। ठीक है, ये इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन मैंने ब्रैकेट में f माइनस जी हो गया, μ1m1 हो गया, प्लस μ1m2 हो गया, प्लस μ2m2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको जो है और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर मेरा अगर हम बात करें दिस μ2gm1 is equal to f minus g μ1m1 m2 प्लस μ2m2। ठीक है, अब आप यहाँ से हम μ1 एंड μ2 दोनों की हम वैल्यू सेपरेटली भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे μ2 का जो ये है, एक तो ये है मेरे पास में, दैट इज इक्वल टू μ2gm1। अब यहाँ पे जो μ2 है मेरा, यहाँ पर एक है, तो g है ना, जो ये हो जाएगा आपको माइनस जी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस जी μ2m2 विच इज इक्वल टू f माइनस जी कॉमन रहेगा। एक इस वाले को, ये वाला जो मेरी वैल्यू है दैट इज μ2m2 को मैंने इधर ले लिया है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, बाकी जो है आपका सेम रहेगा। तो μ1, अब यहाँ पे μ1 को हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2 ऐसे करके। तो यहाँ से भी आप चाहेंगे तो यहाँ से आप μ2g इसको भी आप कॉमन कर सकते हैं, विच इज आई विल गेट m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू f माइनस जी, ब्रैकेट में μ1 m1 प्लस m2। ठीक है, अब आते हैं नीचे, इसमें हम निकालने की कोशिश करेंगे अब द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2। μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली हम लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाई, ये g है, m1 प्लस m2 माइनस, अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं तो जी कैंसिल हो जाएगा और m1 भी कैंसिल हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 भी कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा सीधे 1 डिवाइड बाई, सिंपली ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा g, यू विल बी गेटिंग μ1। तो μ2 इज इक्वल टू f divided by g m1 plus m2 minus μ1, or we can say that μ1 plus μ2 will be equal to f divided by g m1 plus m2। ठीक है, इस μ1 को मैंने यहां ले लिया, तो फाइनली व्हाट आई हैव गॉट इट इज f μ1 plus m2 is equal to f divided by g m1 plus m2। ठीक है, μ1 एंड μ2 जो है दे वर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो अभी मैं फिर से एक बार ब्लॉक यहीं बना देता हूँ, ऐसे करके मैंने ब्लॉक बनाया था, ये m1 था, ये m2 था, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो μ2 था, यहाँ पे मैंने लिया था μ1, और यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाई थी, एक्सटर्नल फोर्स। एंड इफ बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद a common acceleration without any slippage, then the value of μ1 plus μ2 should be equal to f divided by g m1 plus m2। तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे।
ठीक है. So in the next session I will be discussing another case where there will be um, a slippage between the two blocks, or we can say that those stacked blocks will be moving with different acceleration. And in that case we will try to find um, what will be the respective acceleration of those two blocks, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. सो ये जो केस है, इस केस में क्या था कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन. तो कॉमन एक्सेलरेशन जब मूव कर रहे हैं उस केस में हमने ये एक रिलेशन निकाला है वेयर μ1 प्लस μ2 विल बी इक्वल टू F डिवाइड बाय G m1 प्लस m2. F is the external force applied and μ1 and μ2 are the coefficient of static friction. This was the coefficient of static friction between this m1 and the surface, and μ2 was the coefficient of static friction between the two blocks. ठीक है. तो इससे आप इवन यहाँ से क्या है, फोर्स भी द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स क्या होनी चाहिए, μ1 प्लस μ2 इंटू जी ब्रैकेट में m1 प्लस m2. ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हैं. और यहाँ से आप ये दिस μ1 की दिस μ2 की वैल्यू भी आप अलग से निकाल सकते हैं अगर μ1 आपको पता है. और अगर आपको μ1 पता है then you can find the value of μ2. ठीक है. So in this session this is in the next session, that is in the session number 4, I will be discussing a different case where there will be the slippage between the two blocks. So thank you very much for joining this session, and I hope you have understood the concepts behind behind the derivation of this equation. And after the session number 4, that is, this is the session number 3. After this, the session number 4, we will try to solve a few numerical problems which will be based on the friction between the stacked blocks. So thank you very much and have a nice day.